All right. Okay, so the last topic that we covered yesterday was merging in data frame. See, we compared two things. हमने दो चीज को compare किया था, concat of data frame and merging of data frame. So the only difference that we find out is that in merging, it is the common column which has been shown as a data frame. जैसे यहाँ पे इस example में अगर ध्यान दो तो था D1, D2, D3 तीन डिक्शनरी बनी थी. D3 डिक्शनरी is made up of common roll numbers which is taken from D1 and D2. कुछ common roll numbers लिए गए थे. We created a data frame of D1, we created a data frame of D2 and we created a data frame by concatenation. तो यहाँ पे data frame 3 जो बना था सारे data थे D1 का D2 का row wise था. Then we created another data frame of DF4 जो कि सिर्फ D3 का है. And then we applied merge in between DF3 and DF4. So what is the output we found? We found that it was only dealing with the common roll numbers and whatever names were there in those columns in this particular data frame, it was showing those things. Okay, two people are entering. All right. So this is the topic that we have seen yesterday. Today's topic and the last topic of first chapter is related to CSV file. Now, CSV file. Anyone is aware of CSV file? किसी को मालूम है ये CSV फाइल क्या होती है? कोई है यहाँ बता सकता है? Yes, no? नहीं मालूम? हाँ बेटा, tell me. Yeah. Swastika, yeah. So it's a commonly used file for most of the formats because it's very portable. So in different platforms it can be used. How does it appear? How does it look like? किसकी तरह दिखता है? Absolutely right. लिस्ट या डिक्शनरी टाइप ऐसे डेटा स्टोर करता है वो, हाँ. which is separated by commas. कॉमा नहीं, ये तो यू आर रीडिंग मी द पैराग्राफ. आई एम जस्ट आस्किंग कि ये फाइल आज तक कभी यूज की है, देखा है? सर येलोइश होता है सर, ऐसे येलोइश होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, कलर भूल जाओ. It is exactly like Excel. MS Excel जैसा होता है ना, पूरा का पूरा ऐसा. तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ. हम CSV फाइल क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are reading CSV फाइल? Because in present scenario, whatever software you are using, you need to carry data from one place to another place in a software. So CSV is the best format to send software through mail, through you can use it in Python. That is why Python ने इसे adopt किया कि अपने अंदर ले सकता है CSV को, CSV से डेटा खींच सकता है, CSV में डेटा भेज सकता है. क्यों? क्योंकि एक कॉमन फॉर्मेट है. एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, just on the screen, just have a look at it. This is your daily attendance that I am taking. Just a moment. ये तुम्हारा डेली का अटेंडेंस है, ठीक? अब मैं ये अटेंडेंस आया. Now I am going to download a file. मैं ये गया राइट साइड में, I'll say download response. Can you see what type of response it is downloading? क्या दिख रहा है? .csv. क्यों .csv? पोर्टेबल है, छोटा है, आसान है. चलो अब देखते हैं ये दिखता कैसा है. Let me download it. Okay, just a moment. ये मेरा डाउनलोड हो गया. In my system, I have already installed Excel. मेरे सिस्टम में Excel है. Just a moment, let me increase it. So this is the file. ये आज की अटेंडेंस शीट है. मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ. देखो किसमें ओपन हो रहा है. Just a moment. किसमें ओपन हो रहा है? Excel में ओपन हुआ. ठीक, it is exactly like Excel. वही कॉलम है, वही है, और पर फाइल का नाम CSV है. तो look, what is the data it is having? Time stamp. कितने बजे कितने समय आपने अटेंडेंस दिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन सी क्लास उसने भरा और किस तारीख का अटेंडेंस है. सो आई हैव द रिपोर्ट विथ मी एवरी डे. दिस इज व्हाट आई नीड टू सेंड टू द क्लास टीचर, और उसको देख के वो एब्सेंट प्रेजेंट लगा देते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ फॉर्मेट. अब ये फॉर्मेट अगर पाइथन अडॉप्ट कर ले, पाइथन इस पे डेटा यहाँ से खींच सके, अपने प्रोग्राम में डेटा फ्रेम बना दे, यहाँ डेटा फ्रेम की चीजें यहाँ भेज दे, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर अस. क्यों? बिकॉज दिस इज द कॉमन फॉर्मेट दैट वी आर यूजिंग. So that is why we are learning CSV file. हम यहाँ पे CSV इसलिए सीख रहे हैं कि हम पाइथन, हम यहाँ से डेटा को पाइथन में खींच सके, पाइथन से यहाँ डाल सके. So you can see this is 12th कॉमर्स. जैसे स्वास्तिका ने अटेंडेंस दिया 12:34 को, ठीक है. वहीं पे विवेक ने अटेंडेंस भेजा 12:38 को. ठीक, this is the date and time he has given. He has not given, in fact automatically it has taken.
सो दिस इज हाउ आई टेक द ह्यूमैनिटीज के कितने स्टूडेंट है. आई कैन सी आर्निका ने अटेंडेंस दे दिया है एंड अक्षदा ने दे दिया है 2 और एक अदिति ने दे दिया है 3. सो 3 ह्यूमैनिटीज. सुबह 12th साइंस की क्लास हुई थी तो आई कैन सी अटेंडेंस का टाइम 8:01 से लेके 8:17, even 8:27. Arin Soni has given at the end. So this is what I can predict कि attendance कौन दे रहा है नहीं दे रहा है कितने बजे दे रहा है. So this is a data which is in CSV format and it is exactly like Excel. It is opening in Excel because this is the default opening software in my system. अब मैं काम करता हूँ. Just a moment. Let me close it. Don't save and let me right click on it. अच्छा एक मिनट रुक जाओ बेटा. Let me open Notepad and file open. Just a moment. I'm doing a test run for you. Downloads में क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है भाई? अच्छा ये है डाउनलोड. हाँ यहाँ दिखेगा. Just a moment. अरे एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ. Can you see it? This particular sheet I tried to open in Notepad. It is giving me something like this. The data has come, but Notepad is not able to open it in a readable format. ठीक, but open कर रहा है. That is the software available. Notepad भी है मेरे पास. मैंने Excel में खोला तो मुझे डेटा पूरा परफेक्टली दिख गया. Notepad में नहीं दिख रहा है. Similarly, अगर कोई सॉफ्टवेयर उसे पढ़ नहीं पा रहा है तो वो डेटा किसी काम का नहीं है. But our Python will be able to read, extract, and even send data to CSV file. That is what we are going to see here. So let us proceed. चलो हम देखते हैं. फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV.CSV एक्सटेंशन होता है. ठीक, हम अब क्या सीखने वाले हैं? हम यहाँ पे सीखने वाले अपने टेबुलर डेटा को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे CSV में. CSV से यहाँ ट्रांसफर करना सीखेंगे, अपने पाइथन में बुलाना सीखेंगे. Python it appears something like in a table form. Here also it will appear in the form of table, Excel table. All right, so this is what we are going to learn. CSV फाइल के बारे में बताया. लुकिंग एट दिस येलो पार्ट यू माइट हैव टोल्ड कि येलो दिखता है. नहीं, येलो नहीं, वो तो टेबल जैसा भी दिखे. मैंने एक्सेल में खोला तो ऐसा दिखता है, किसी और सॉफ्टवेयर में खोलूंगा तो कुछ और दिखेगा. बट द थिंग इज दैट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, कॉलम और रो दिखेंगे. ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, ये रहा एक्सेल में खुला तो देखो ऐसा दिख रहा है. This is how it opens in Excel also. So it is talking about CSV फाइल कैसे सेव करते हैं .csv एक्सटेंशन से. कॉमन चीजें शुरू में बताया जो हमें मालूम है. How to save it, how to open it, how you can open the things in a notepad editor also. ठीक है, in a text editor also हम इसे खोल सकते हैं. So now the first program that we are going to see is reading from a CSV file to a data frame. हम इस CSV फाइल को रीड करेंगे अपने डेटा फ्रेम में. और ऑलरेडी हमारे पास एक CSV फाइल रखी हुई है. लेट मी शो इट टू यू. ये लेट मी गो टू डाउनलोड्स and let me rename this particular file. Today's date is 8/5. Just rename 8/5/21. ठीक, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ. ये जिप मोड में है. आई एम सिंपली एक्सट्रैक्टिंग इट इन अ प्लेन फोल्डर. सो 2 minutes. हाँ, it has been done. Now see, ये मेरे पास 8/5/21 नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर एक फाइल रखी हुई है अटेंडेंस शीट नाम की. ठीक है, मैं इसको छोटा नाम दे देता हूँ. I'll rename it as and I'll name it AS नाम की मेरे पास एक CSV फाइल मौजूद है. So what I am going to learn right now is that how we can read the CSV file in Python. So it's a very simple thing. Have a look at the coding. Import pandas as PD, पहली लाइन. df एक वेरिएबल बनाया. df इज नॉट अ डेटा फ्रेम, प्लीज रिमेंबर. df वेरिएबल का नाम है. ठीक है, और हमने कमांड दिया. व्हाट इज द सिंपल कमांड वी आर राइटिंग? pd.read_csv. रीड करो और ये लोकेशन दे दिया और प्रिंट करो df.
तो इस तरह से मेरा ये प्रिंट आउट हो जाएगा। मेरा पाइथन CSV फाइल को रीड करके ऐसा प्रिंट करेगा। लेट अस डू दिस कोडिंग। अब इस कोडिंग को हम अपने CSV फाइल में रीड करके देखते हैं। आई विल गो टू पाइथन, I'll open a new file. चलो import pandas as pd। ठीक, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं df is equal to pd dot read underscore csv। देख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में है कि CSV कैसा लिखा है। लेट मी हैव अ लुक एट इट। यस, शॉर्ट फॉर्म में। एंड विद इन ब्रेसेस द आई हैव टू राइट द लोकेशन ई डेटा एम्प्लॉय CSV। ये तो उसकी फाइल है, मेरी फाइल का लोकेशन कुछ और है। लेट अस सी मेरी फाइल का लोकेशन कहाँ है। ये रहा मेरी फाइल का लोकेशन। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया। देखो मैं सिंपल सिलेक्ट किया, कॉपी किया, अपने कोडिंग में गया और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के डबल कोट्स लगा के पेस्ट किया। बस एक ही चीज मुझे चेंज करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लास्ट में मुझे फाइल का नाम लिखना है। फाइल का नाम था as.csv, अटेंडेंस शीट .csv था। डबल कोट्स कंप्लीट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, और प्रिंट df लगाया। अभी मैंने यहाँ एक मिस्टेक की हुई है, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? दिस इज द कोड, this is the code, book code. I'll show it in the book code. This is the book code. Please have a look at this line. This line means I'm circling it. इस लाइन को देखो और मेरे कोडिंग को देखो और मुझे मिस्टेक बताओ। Can anyone tell me the mistake? Look at this line. Okay, and I'll show you my code. Here is my code. What is the mistake do you find? The double slash. डबल स्लैश, एब्सोल्युटली राइट। ये मैंने जब एड्रेस को कॉपी किया तो वो सिंगल स्लैश में किया। यहाँ पे हमें डबल स्लैश देना पड़ेगा। पाइथन हियर यू हैव टू पुट अ डबल स्लैश इन फ्रंट ऑफ एवरी लोकेशन। वो सिंगल स्लैश में वर्क नहीं करेगा। ठीक है, डबल स्लैश। चलो सेव करता हूँ, हो सकता है रन हो जाए, हो सकता है एरर दे दे। ठीक, ये मैंने सेव दबाया। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। ये लाल रंग का डिस्टर्ब कर रहा है। ओके ओके, सेव किया, क्लास 12 IP में गया और अभी मेरा ये पहला CSV फाइल .py नाम का मैंने प्रोग्राम रखा, सेव किया। अब नाउ आई विल रन इट एंड लेट मी सी। कैन यू सी द डेटा? दिख रहा है बेटा? ये डेटा वही है, Yes, टाइम sir. स्टैम्प है और सब कुछ है 0 1 2। हाँ, बस एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि चूंकि स्क्रीन छोटा है तो ये यहाँ बीच का जो नाम का डेटा है उसमें डॉट डॉट दिखा दे रहा है, बट इट इज हैविंग द डेटा। डोंट यू वरी अबाउट इट, इज जस्ट द व्यू व्हिच इज अफेक्टिंग द थिंग्स। व्यू के कारण ये ऐसा डॉट 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 आ जा रहा है, बट इट इज शोइंग द डेटा। सो व्हाट डिड वी लर्न हियर कि हमने एक CSV फाइल का डेटा को उठा के सीधा पाइथन में उठा लिया और वो एज इट इज ले रहा है। लुक एट द इंडेक्स नंबर, इट इज गिविंग 0 1 2 3 4 5 6, वो वैसे ही दे रहा है। ठीक है, हेडिंग नहीं दिख रही है मुझे। ठीक, लुक एट द थिंग कि यहाँ पे खाली डेट का हेडिंग टाइम स्टैम्प का दिख रहा है, यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू परफॉर्म अ वेरी सिंपल एक्टिविटी। मैं एक छोटा सा एक्टिविटी करता हूँ कि मैं अपनी फाइल को सेम रखता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। मैं अपने लोकेशन में जाता हूँ और इस CSV फाइल में मैं क्या करता हूँ, थोड़े से चेंजेस करता हूँ। What change I am going to do? मेरे को टाइम स्टैम्प नहीं चाहिए। I'll just remove the times. I'll delete it. ठीक है, अब 3 ही डेटा है। सर पर नेम क्यों नहीं दिखा रहा है? नेम नहीं दिखा रहा है तो फिर पर्पस क्या हुआ? नहीं बेटा, वो डेटा है। इट इज बिकॉज ऑफ द स्क्रीन साइज। पाइथन का स्क्रीन साइज के कारण वो डेटा को श्रिंक कर दिया है। तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी देखो मैंने 3 डेटा बस रखा है। ठीक है, एट प्रेजेंट। लेट मी सेव इट, लेट मी रिकॉल द फाइल अगेन, लेट मी रीरन माय प्रोग्राम। ये सेव कर दिया। अब मैं अपने पाइथन में गया। लेट मी क्लोज दिस रन मोड एंड लेट मी ओपन माय पाइथन कोडिंग। फिर से वही फाइल बुला रहा हूँ as.csv। अब की बार मैंने एक डेटा उसमें से रिमूव कर दिया एंड आई विल रन इट टू सी आउट हाउ द आउटपुट अपीयर्स टू बी। सो ये दिखा? कैन यू सी इट बेटा? वो डेटा तब भी वहां था, बट चूंकि लुक एट द स्क्रीन, एक इतना बड़ा ऑक्यूपाई किया हुआ है जगह, उस जगह को वो नहीं कर पा रहा था स्क्रीन में, इसलिए उसको श्रिंक कर दिया, बट दैट वाज प्रेजेंट।
हर डेटा इतना बड़ा है नेम का, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कैरेक्टर्स देखो वो कर रहा है। बट इट इज नाउ शोइंग, सी लुक एट द कॉलम हेडिंग, सबको दिख रहा है कॉलम का हेडिंग उसने लिया है एंटर योर नेम क्लास डेट, और उसने पहले को ले लिया है 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स एंड सो ऑन, ऑटो इंडेक्सिंग इसने कर दिया टिल द लास्ट। इज इट विजिबल टू एवरीवन? सो वन थिंग इज वेरी क्लियर, CSV में जो भी डेटा है वो पाइथन में उठ के आता है। हाँ, स्क्रीन के कारण वो हमें दिख नहीं रहा है, इट्स आवर स्क्रीन इज वेरी लिमिटेड साइज। हम वहाँ पे n नंबर ऑफ डेटा डिस्प्ले करेंगे कोई पर्पस नहीं रहेगा, हम वहाँ पे लिमिटेड डेटा डिस्प्ले करने की सोचेंगे जो हमारे काम की है। ऑलराइट, जैसे कि MySQL में होता है एक टेबल के अंदर 15 कॉलम हो सकते हैं, बट यू हैव द फैसिलिटी टू डिस्प्ले ओनली 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स एट वन टाइम, दैट इज व्हाट वी विल बी हैविंग हियर आल्सो, बट ऑल डेटास आर कमिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये रहा हमारा कॉलिंग अ CSV फाइल, वेरी सिंपल कंसेप्ट था, बहुत छोटा सा। ओके, सो what is the code that we were using? We were using a simple code of calling the file that is here read CSV and the location. Okay, और हमने ये लोकेशन डाल दिया। सो ये पहला प्रोग्राम हुआ। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड वे। इसी तरह छोटे छोटे प्रोग्राम दिए हुए हैं एंड इट्स वेरी सिंपल। कहीं पे किसी को कोई तकलीफ होगी तो मुझे रोक देना। नाउ रीडिंग ओनली सम स्पेसिफाइड रोज। अब पूरा डेटा रीड कर रहा था, अब मैं चाहता हूँ मेरे डेटा में मेरे CSV फाइल अटेंडेंस शीट में करीब 37-38 स्टूडेंट्स के डेटा हैं। आई वांट टू रीड ओनली 5 ऑफ देम, आई वांट टू रीड ओनली 10 ऑफ देम, दैट आल्सो कैन बी डन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आई हैव टू स्पेसिफाई अ एट्रीब्यूट कॉल्ड n rows। ये मैंने रीड लगाया, ये मैंने लोकेशन बताया और मैं लिखूंगा n rows is equal to 5, तो अब वो 5 rows बस रीड करेगा। एंड व्हाट इट इज गोइंग टू डिस्प्ले, इट इज गोइंग टू डिस्प्ले ओनली द फर्स्ट 5 डेटा। Here it is, look at the output, पहले 5 डेटा को 0 इंडेक्स से 4 इंडेक्स तक उसने डिस्प्ले किया। So n rows attribute, n rows is equal to number, will read whatever how many data you want to read it here. Okay, reading CSV file without header। ये जो हेडर है एम्प्लॉय ID, नेम, एज, सिटी, सैलरी, हमारे में आ रहा था एंटर योर नेम क्लास और शायद डेट आ रहा था, पता नहीं जो भी आ रहा है। We don't want to read Yes, this the name one. class date. नेम क्लास डेट, we don't want to read it, we don't want a header, so we have the facility with us। बुक्स के लिए भी हमारे पास है। क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा और उस एट्रीब्यूट का नाम है हेडर इज इक्वल टू नन। ये देखो भैया हेडर मत दिखाओ, and it will not show you the header। how the output will appear, the output will appear something like this, what you see on the screen। यहाँ पे अब हेडर की जगह क्या दिख रहा है, कोई बताएगा ये क्या है? An index number. सर इंडेक्स इंडेक्स नंबर, डिफॉल्ट कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये तो रो का है, ये तो हमारा बनता ही है। अब हमारा हेडर भी गायब हो गया है। एंड व्हाट हैज टेक बीन डन, प्लीज पे अटेंशन। हेडर अब कहाँ आ गया है, हैव अ लुक एट इट। ये रहा हेडर, दिख रहा है पहला डेटा। Oh, yes, sir. वो रो बन जाता है, वो ओमिट नहीं होता है। नाउ इट हैज बिकम द फर्स्ट रिकॉर्ड फॉर अस। ठीक है, द हेडर इंफॉर्मेशन एज द फर्स्ट रो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में कमेंट लाइन में, द डेटा फ्रेम विल कंटेन द हेडर इंफॉर्मेशन एज द फर्स्ट रो। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जब हम यहाँ पे ये कमांड दे रहे हैं pd.read CSV, तो हम कुछ भी डेटा फ्रेम वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, df इज द वेरिएबल नेम, नॉट द कीवर्ड। पर वो क्या बना रहा है, वो बनाता डेटा फ्रेम ही है। when you are reading a data, when you are reading a CSV file, it is creating a data frame where you are not using any keyword called data frame, but it is creating a data frame only। so take care, ये चीज याद रखना। हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई कुछ पूछा क्या एक बार? जैसे अल्टरनेट वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, देखेंगे अभी थोड़ी देर में, देखते हैं बेटा। अपने पास ILOC LOC बहुत सारी चीज रखी हुई है डेटा फ्रेम की, है ना। ऑल्टरनेटिव लगता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न मैच में करेगा कि मुझे पर्टिकुलर उसके बताओ जो एज जिनका 34 से ज्यादा है, उस पैटर्न में वो बिल्कुल कर सकते हैं हम। वी विल बी सीइंग दैट वन, देखेंगे। हमारे पास डेटा फ्रेम की जितनी फैसिलिटी है सब यहाँ एप्लीकेबल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग CSV फाइल विदाउट इंडेक्स। सॉसी कहाँ बेटा, तू रेज हैंड की है, बता, पूछ।
सर उसमें जैसे पहले हम लोग करते थे फॉल्स लिख देते थे कोई भी एट्रीब्यूट में, तो वो हाँ। अपीयर ही नहीं करता था, या फिर हाँ। तो नन और फॉल्स दोनों सेम ही हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो जो आपने डेटा फ्रेम के साथ सीखा है, यू अप्लाई दैट कमांड आफ्टर दिस लाइन। आफ्टर दिस लाइन मतलब डेटा फ्रेम एक बार आपने इसको रीड कर लिया, और उसके बाद इस डीएफ के साथ आप सारे अपने चीजें अप्लाई कर दो जो जो पड़ा है डेटा फ्रेम से रिलेटेड, इट विल वर्क इन दैट वन। नन का, नैन का, रीडिंग का, जो भी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, वी कैन अप्लाई इट इन आवर डीएफ एंड इट विल वर्क। ठीक। So the first line, this line is only teaching you to make a CSV file your data frame, and after that you can apply n number of operations that you are aware of with your data frame. You can perform in that DF. आप बिल्कुल कर सकते हैं। Okay, एक और देख लेते हैं। Now we want to read the CSV without index. Index के साथ हम read नहीं करना चाहते हैं। This is what I want. Seat. यहाँ पे अब index गायब हो गया। फिर से एक attribute देख लेते हैं भाई, एक नया attribute, index call is equal to 0, मतलब we are saying कि ऑफ कर दो उसे, डोंट यूज द इंडेक्स कॉलम। इन दैट केस यहाँ पे पर इंडेक्स बन रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अब ध्यान दो, जो पहला कॉलम है वो एज एन इंडेक्स यहाँ पे देखो उस जगह पे आ गया। कैन यू सी इट हियर? आउटपुट में थोड़ा सा ध्यान दो भाई, डेटा फ्रेम है तो Yes, इंडेक्स sir. तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आप डिफॉल्ट रखना चाहो या ना रखना चाहो। आप डिफॉल्ट नहीं रखना चाहते तो यूज इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू 0, बट लुक एट एम्प्लॉय आईडी। देखो एम्प्लॉय आईडी की हेडिंग थोड़ी नीचे है और ये कॉलम की हेडिंग है वो एज इट इज ऊपर आ रही है। ये कॉलम एज का है, ये कॉलम सिटी का है। पहला कॉलम जो है वो इंडेक्स बन जाता है, इट इज रिप्रेजेंट एज द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। ठीक, नेक्स्ट। So, हाँ बेटा पूछ। अगर ये एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स बनाए तो नैन का वैल्यू उसमें चलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देख ये थोड़ा सा यहाँ पे ना गलत दिया हुआ है। इनफैक्ट ये वाला डेटा ना होगा ही नहीं, इट इज अ मिस्टेक इन द बुक। ऐसा कोई डेटा नहीं हो सकता जिसमें सारे सबने रो नैन। नैन आए, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ ये हो सकता है, लुक एट दिस, ये हो सकता है एक नैन है और कोई नैन है नहीं, नहीं है, बिल्कुल दिस इज वेरी मच पॉसिबल, बट ये ना, ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग थिंग विच इज गिवन इन द बुक, प्लीज मार्क इट। क्योंकि क्या मतलब है पूरा नैन रखने का, देयर इज नो यूज। अरे अदिति बाहर चली गई, जस्ट अ मोमेंट बेटा। ओके हाँ, सो ये जो मैंने अभी काटा है ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन इफ यू ट्राई नहीं होगा। आप एक खाली खाली का कोई मतलब ही नहीं है, व्हाई टू कीप इट देन इन दैट केस, बनाओ ही मत उसे। ठीक, एक ना एक डेटा तो रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, सो लेट अस लुक एट द सेकंड टॉपिक। क्या कह रहा है सेकंड टॉपिक? ओके, रीडिंग अ सीएसवी फाइल विद अ न्यू कॉलम नेम, मतलब सिंपल सा, भले ही कॉलम नेम नेम है, एज है, मैं इसका नाम बदल देना चाहता हूँ। डू यू रिमेंबर डेटा फ्रेम में हम नाम बदल सकते हैं अपना खुद का कॉलम का, पढ़ा था ना इस कमांड को? Yes. ठीक, we will be applying in a similar manner. What we are going to do, we are going to do a simple thing. ये देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया names is equal to एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, पांच नाम, पांचों कॉलम है, पांचों कॉलम के नेम बदल दिए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे नेम ये चेंज करोगे आप, ये एक एट्रीब्यूट नेम्स के साथ यूज करोगे, तो लुक एट द कॉलम हेड, कॉलम के ये देखो ई आई डी बन गया, ई नेम बन गया, ई एज बन गया, ई सिटी बन गया और ई सैलरी हो गया। ठीक, this is what has happened if we use a attribute called names is equal to, we specify the name, so it has changed the thing. Okay, स्किप रोज क्या है? कौन सा बेटा? स्किप रो, हाँ अच्छा, हाँ ठीक ठीक, अच्छा याद दिलाई। स्किप रो का मतलब ये है कि जो पहला रो था, अब चूंकि नेम बदल गया है, पहला रो मेरा क्या था, हैव अ लुक एट इट, वो तो हेडिंग था ना कॉलम का। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्क्रॉल अप, एक मिनट ऊपर में दिखाता हूँ। देख बेटा, इस रिकॉर्ड में क्या था, पहला वाला जो ये है, जब हमने उसको डिफॉल्ट नेम दे दिया 0 1 2 3 दे दिया, तो यहाँ पे पहला वाला डेटा क्या हो गया है, जो कॉलम का नाम था। ठीक है, आई डोंट वांट दिस रो, सो व्हाट आई विल डू, स्किप रो इज इक्वल टू 1, मतलब पहले 1 रो को स्किप कर दो। स्किप रो इज इक्वल टू 3, तो पहले 3 रो को स्किप कर देगा और ये तीनों डेटा गायब हो जाएंगे। वो डेटा दिखाना कहाँ से चालू करेगा, 3 से चालू करेगा। So that is what skip rows does for you. It removes the row which you don't want to see it. In this example here, we don't want to see the zero, the first row. All right, जो पहला रो चूंकि क्या था, हेडिंग था,
That is why we want to remove it. We will say skip row is equal to 1. ठीक, look at this one. In the above code, we have given the option skip rows is equal to 1, which will omit the default column names from the CSV file. जब आपने नाम बदल दिया है तो क्या हो, रूल क्या कहता है कि जो भी उसका नाम है कॉलम का वो पहला रो बन जाएगा, ओरिजिनल नाम. And we don't want it, so we will say skip rows is equal to 1 and it will not show that one. Clear? Akshada, others? Yes, sir. Yes. कि skip row का काम क्या हो रहा है. ठीक, अगर ये कमांड नहीं लिखा रहता, फॉर एग्जांपल अगर हम ये नहीं देते तो यहाँ पे जो जीरो में डेटा दिखता है क्या दिखता, कोई बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी जीरो में क्या दिखता पहले रो में? पहले रो में मुझे जो ये पहले दिया हुआ था पहला जो नाम दिया हुआ, हाँ ये नाम दिखता, ये वाला ये दिखता, नेम एज, क्योंकि इसी नाम को तो बदला है हमने, ये पहला रो बन जाता हमारा, तो उसको हम नहीं दिखाना चाहते. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट हियर. Okay, just a moment. Now, डेटा फ्रेम्स CSV फाइल से तो ले आए हैं, सब कुछ कर लिया, देखना है 5 डेटा 10 डेटा, रो का कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं हटा देना है या कॉलम का नेम हटा देना है. नाउ वी विल लर्न टू मॉडिफाई इट. कुछ एक डेटा है जो पहले से वहां पे रखा हुआ है, अब उसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं कंटेंट इन अ CSV फाइल. CSV फाइल में वो मॉडिफाई हो जाए. सो पाइथन कैन इवन मॉडिफाई द कंटेंट also. How it is to be done? Swastika, हाँ बेटा, tell me. पूछ. तो मल्टीपल रो भी स्किप कर सकते हैं उसमें. मल्टीपल रो इन अ सीक्वेंस. ठीक, सबसे पहली चीज ये ध्यान रख बेटा कि हम डेटा फ्रेम में रो वाइज चीजों को सर्च नहीं करते हैं, कॉलम वाइज सर्च करते हैं. जैसे तेरा पहला क्वेश्चन था जो पहले दिन का है ना, तो हम यहाँ पे एक साथ 5 रो को स्किप कर सकते हैं. स्किप रो इज इक्वल टू 5 किया तो शुरू के 5 स्किप हो जाएंगे, बट इन अ सीक्वेंस ओनली इट विल वर्क. You cannot work it in a randomly manner कि पहला 5वां 10वां ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है स्वस्तिका? Yes sir. Okay, so let us move. Example, have a look at it. रीड किया CSV को, ये रहा वो रीडिंग फाइल, और NA values 16,000. What it is going to do? Can anyone tell me? It will replace NaN with 16,000. 16,000 because there are some NaN values in my one. अब मैं एक particular NaN को ही replace करना देख रहा हूँ, तो this is how I can do it. NA values is equal to 16,000, and when we say print df, what is going to happen? Just a moment. When we say print df, so ये ओरिजिनल है, रुको एक मिनट, ये पहला डेटा फ्रेम है जब एक्चुअल था, जब इस एक मिनट बेटा, जब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हैव अ लुक एट इट. ये जो नैन है ये हो जा रहा है 16,000 हो जा रहा है. ठीक है, अरे ये नैन भी तो होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है? Some mistake given here, please rectify it. पर एक ही नान चेंज हुआ, बाकी कोई भी नान नहीं चेंज हुआ. हाँ नहीं, बाकी ये डेटा तो भूल जाए बेटा, सेकेंड रो का डेटा भूल जाए, इट इज स्क्रैप डेटा, सारे नैन हैं. इस नैन को भी होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? इसको भी गलत है, कुछ तो गलत है यहाँ. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ऑल नैन्स विल बी चेंज. सेकेंड डेटा तो एकदम स्क्रैप डेटा है, वो किसी काम का नहीं है, इट हैज टू बी नेग्लेक्टेड. ठीक है, बट इट विल चेंज द नैन, बोथ द नैन्स. लेट मी सी वेदर कुछ कमेंट दिया है कि नहीं. इट कैनॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता. नहीं, as shown in the above, the salary of Akash has been modified from 16,000 to 9. क्यों भाई, आकाश का हो गया तो निधि ने क्या पाप किया था, उसका क्यों नहीं हुआ? नो, इट इज रॉन्ग. आई थिंक इट इज रॉन्ग. ये ऐसा नहीं हो सकता. चेक करते हैं भाई, एक मिनट रुको. अभी अपने डेटा फ्रेम में थोड़े चेंजेस लाता हूं मैं. ये मेरा डेटा फ्रेम है AS, ऑलराइट, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ. मैं ये हिमांशी का डेटा गायब कर देता हूँ एक, और तविशी का डेटा गायब करता हूँ 2. मैं सेव करता हूँ एंड लेट मी कॉल इट इन माय पाइथन प्रोग्राम. पाइथन में मैं फिर से इसे एक बार रन करता हूँ, सेम डेटा को, फाइल सेव रन, एंड लेट मी सी व्हाट इट शोज, क्या दिखाता है. तविशी, कैन यू सी नैन आया है दोनों का? ये देखो, हिमांशी का नैन और तविशी का नैन. कैन यू सी इट?
मैंने वो डेटा गायब कर दिया था Yes, तो sir. नैन आ गया। अब नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट, अब मैं कमांड में इसे रिप्लेस करूंगा। ठीक, ये पहला तो प्रिंट आउट हो गया। अब उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रिंट df के बाद मैं ये क्या कमांड था भूल गया, क्या करने वाले हम चेंज करने वाले हैं na values is equal to 16,000 करने वाले हैं। ठीक है, रीड करो, कॉमा करो, na values is equal to लिस्ट फॉर्म में देना है, इक्वल टू इसमें कौन सी वैल्यू डिलीट की है मैंने, चलो ये तो इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ। The class 11 sir. क्लास 11 ना, इसमें ये चलो मैं भी इंटीजर वैल्यू ही डालता हूँ। लेट मी सी, सेव, रन नहीं किया, क्यों नहीं किया, नैन का नैन ही रखा ना। हाँ सर क्योंकि हो सकता है वो स्ट्रिंग वाला है हाँ क्लास। स्ट्रिंग है ये, इंटीजर का ये देखना पड़ेगा, इंटीजर में ही काम करेगा। सो आई डोंट हैव एन इंटीजर, ये तो डेट कॉलम है। डेट एक na values is equal to से run na values सही लिख रहा हूँ क्या कि गलत लिख रहा हूँ? जस्ट अ मोमेंट, आई एम चेकिंग द थिंग। na अंडरस्कोर वैल्यूज, ठीक है, बट मे बी कि भाई ये स्ट्रिंग वैल्यू है बोल के नहीं ले रहा है। अरे नहीं, मैं सेव किया था कि नहीं? हाँ सेव तो किया था। हाँ सेव तो किया है, बट इट इज स्टिल शोइंग नैन। ओके ओके ओके, चलो बेटा लेट मी चेक इट। ये मे बी द रीजन कुड बी कि मेरे वो रो का वैल्यूज ही पूरा जो है आपका it is in string format, maybe that is the reason it is not working here। यहाँ पे ये उसे रिप्लेस नहीं कर रहा है। और क्या हो सकता है इसमें कारण? आई डोंट थिंक सो एनी अदर रीजन कुड बी वर्किंग हियर। सो na values ये अभी वर्क नहीं कर रहा है। लेट मी वर्क ऑन इट एंड आई विल सी इट why it is not working। maybe I have to create a different data frame with integer value and then it will change, not a value। This can be respective salary only because salary is the only one which is having integer value here, so it is replacing। चलो ठीक, आई विल सी टू इट। ऑलराइट, दिस हैज नॉट वर्कड, ये अभी मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाया। आई विल शो इट टू यू मे बी आफ्टर, लेट मी वर्क ऑन इट एंड देन आई विल शो इट टू यू दैट वन। ओके ओके, सो एक्चुअली सर हाँ हाँ बेटा बोल। वो सर नैन वैल्यू को 16,000 नहीं कर रहा था, जो वैल्यू 16,000 थी उसको उसने नैन किया। मैंने अभी ऊपर वाला टेबल देखा, वहां पे आकाश की वैल्यू 16,000 दी हुई थी, तो अच्छा जिसकी सैलरी 16,000 थी उसको उसने नैन किया है। अच्छा, एक मिनट, यू आर सेइंग कि जिसकी, हाँ 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 हाँ, फिर उसके नीचे भी लिखा है कि कन्वर्टिंग लाइक नहीं आकाश का 16,000 उसने, यस सर, आकाश हैज बीन मॉडिफाइड फ्रॉम 16,000 टू नैन। मतलब वो पहले उसका 16,000 ही था वैल्यू, अगर आप ऊपर के थोड़ा टेबल देखेंगे तो वहां पे उसका 16,000 ही है वैल्यू, उसको उन्होंने नैन हाँ किया है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ आकाश का उसने किया, ओके ओके। अच्छा, वी आर चेंजिंग इट टू na value is equal to चेंजिंग इट। 16,000। ओके 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 ओके, हाँ हाँ आकाश का नैन हो रहा। अरे रामा रे, रॉन्ग, गुड गुड गुड। सो हियर लेट अस हैव अ लुक एट आवर शीट, एक बार हम देखते हैं। जस्ट लेट मी क्लोज दिस रन मोड, पाइथन में जाता हूँ। लेट इट बी
यहाँ तो मेरे पास इंटीजर भी नहीं है। NA values is equal to, let me put it, हिमांशी का नाम देता हूँ। NA The values is time equal is to, about to end. हाँ, We are- yeah. Yes, it will end. But don't you worry about it. So what we will be doing, आज शाम को मैं एक क्लास लूंगा, because there are only 2 topics left. We will complete this chapter today. ठीक है? So let it be. अभी stop Yes, करता हूँ मैं. Today we will meet again at evening.